द जोश दिलीप घोष। दिलीप जी, सबका अलग अलग गाना है, आपका गाना है हाउ इज द जोश दिलीप घोष। ये बनाया किसने? देखिए, ये पब्लिक क्राई होता है, हाँ। अपने आप बनता है। हाँ। तो किसी ने बोला, किसी ने लिखा, किसी ने गाया, ऐसे ही बन जाता है। और नॉर्मली होता है, ये नॉर्मल स्वाभाविक लोगों के उद्गार होता है, वही होती है। So Dilip Ghosh, a sitting member of parliament but from Midnapur, who has now been transferred for Bardhaman Durgapur seat by BJP, is on a campaign mode. Few more days to go before the elections of the fourth phase, that is on 13th of May, and Durgapur Bardhaman as a seat goes to polling on 13th of May. Dilip Ghosh is on the ticket for BJP, and the man himself is now in middle of election campaigning, and there is a song for Dilip Ghosh. How is the Josh? Dilip Ghosh. You ask anyone out here, how is the Josh? And the response is Dilip Ghosh. That's a song, election song. It is being done for Dilip Ghosh, and the election campaign has just started. दिलीप जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2019 में बीजेपी का जो बेहतरीन प्रदर्शन ही रहा बंगाल में 18 सीट, तब आप थे स्टेट प्रेसिडेंट, और 2019 में आप सीट भी जीते, 2024 में फिर से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है बहुत कुछ बदल गया है सर। देखिए, पार्टी आगे बढ़ता रहता है। हाँ। हम लोग लड़ते रहते हैं। हाँ। पार्टी किसी को आगे करता है, हाँ। और उसको देख के लोग आगे जाते हैं। बात सही है कि किसी व्यक्ति का विशेष कुछ प्रभाव होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, लोग पसंद करते हैं, हाँ। और उससे पार्टी को फायदा होता है। लेकिन दिलीप घोष अगर रहता तो ज्यादा फायदा होता सर। नहीं, क्या होने से क्या हो तो बात अलग है, जो हुआ है वो सही है। इतने सारे लोग अभी नया नारा लगाया कि मोदी जी डिक्टेटर बन गए, देश में तानाशाही है। जो बार बार चुनाव हारते हैं उसको बोलने के लिए क्या है? नीचे से ऊपर चुनाव हारते हारते खत्म हो गए पार्टी, उसके लिए मोदी जिम्मेदार है कि पब्लिक जिम्मेदार है? दिलीप घोष का पार्टी में दोस्त कौन है? इतने सारे लोग आपके बारे में इतना कुछ बोलता है, तो मैं सोचा पूछ ही लूं कि आपका दोस्त कौन है? मेरा दुश्मन किसी से नहीं है। हाँ। अब मैं तो सबको दोस्त मानता हूँ, लोग क्या मानते हैं मुझे नहीं मालूम है। शुभेंदु अधिकारी आपका दोस्त है? हर एक व्यक्ति जो दूसरे पार्टी में है, अपने पार्टी में है, हाँ। सबको मैं दोस्त मानता हूँ और उसमें व्यवहार करता हूँ। मैं कभी अपने व्यवहार में अलग अलग नहीं करता। আপনার বাড়ি কোথায়? এইখানে তো আগে আপনি কি বিজেপি বরাবর? আগের বার তো এসএস আলুওয়ালি এর জন্য ক্যাম্পেইন করেছে। হ্যাঁ, করেছি। এবার দিলীপ ঘোষের জন্য? হ্যাঁ, করছি। তো আগের বার এসএস আলুওয়ালিকে পাঠিয়ে দিল, মন খারাপ লাগলো না আপনার সাংসদ? না, মন খারাপ না, উনি হয়তো ইনি আরো ভালো এসছেন। হ্যাঁ। দিলীপ ঘোষ আমাকে যে নাচ খেয়ে যায়, দিলীপ ঘোষ এই বর্তমানে পূর্ণমূর্তি উনি থাকেন। কেন দিলীপ দাকে এত ভালো লাগে কেন? দিলীপ ঘোষ তো বিজেপির কান্ডারি পশ্চিমবাংলার। হ্যাঁ। এই টি শার্ট কাহা সে মিলা? টি শার্টটা কে দিয়েছে? টি শার্টটা দিয়েছে আমার এক বিজেপি সমর্থক। হ্যাঁ, আপনি তখন থেকে নেচে যাচ্ছেন। হ্যাঁ বাপ, হ্যাঁ দাদাকে জিতাতে হবে, প্রচুর ভোটে জিতাতে হবে। প্রচুর ভোটে দিতে হবে। কেন? একদম। দিলীপ দার মতো মানুষ বিজেপিতে নেই, সেকেন্ড ম্যান। দিলীপ দা রাজ্য সভাপতি হলে ভালো হতো। একদম, আর অনেক উন্নত হতো। কে বেশি ভালো, শুভেন্দু অধিকারী না দিলীপ ঘোষ? দিলীপ ঘোষ, দিলীপ ঘোষ। দিলীপ দা কি বলবেন? খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ। খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ হাতে লাগছে। কি ধরেছে? হাতে দিলীপ ঘোষের ছবি আছে। তো দেখাচ্ছেন না কেন? হ্যাঁ, দেখাবো তো, দেখাবো। এই তো দেখাবো, বই কি 100 বার দেখাবো। দেখাবার জন্যই তো রোদে দাঁড়িয়ে আছি। এটা কি লেখা আছে? আমরা পড়াশোনা বলতে পারবো না, বিজেপির ফুল আছে তাই জানি। হ্যাঁ? বিজেপি ফুল আছে তাই জানি। আচ্ছা, এখানে কি লেখা আছে? 1000 টাকার জায়গায় 3000 টাকা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। দিলীপ ঘোষের সম্বন্ধে কি বলবেন? কিছুই নেই, উনি যে এত ভালো, উনি আমাদের জন্য যে এত কিছু করেছেন, এর জন্য আমরা খুবই ভালো আছি। কি করেছে? এই যে আমরা বাড়ি বাড়ি কল দিয়েছেন, আবার আমাদের ধরুন অনেক সাহায্য করেছেন, যাদের রোগ আছে কিছু তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন, এমনকি এরকম অনেক কিছু দিয়ে উনি সাহায্য করেছেন। তো উনি তো এখানে সাংসদ ছিলেন না আগে। উনি ছিলেন না, এখন ওনাকে দাঁড় করিয়েছেন। হ্যাঁ, তো এই সাহায্যগুলো করলেন কি করে? এই সাহায্য করেন কি করে এবার সেটা তো আমি এবার ভালো করে সেটা তো আমি জানি না, এবার সেটা আমি বলতেও পারবো না। আচ্ছা, दिलीप जी,
सबको ये पोस्टर बांटा जा रहा है, बोल रहा है कि 1000 की जगह 3000 दिया जाएगा, तो वो क्या स्कीम का बारे में है सर? जो लक्ष्मी भंडार बंगाल में चलता है हाँ। उसके बदले में अन्नपूर्णा भंडार होगा। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने 3000 रुपया दिया लाडली बहनों को, तो हम भी देंगे अगर लोगों को जरूरत है तो। दीदी 500 रुपया दे के वोट मांगते हैं, मोदी जी 3 लाख दे के घर बना के देते हैं, 10,000 का शौचालय देते हैं, गैस देते हैं, लेकिन लोगों को लगता है 5,500 रुपया हाथ में मिला है, तो हमें लगता है कि बंगाल के लोगों को जरूरत है तो हम 3000 रुपया देंगे। लेकिन ये तो सर राज्य सरकार की इलेक्शन है नहीं, ये तो केंद्र सरकार की है, और ऐसा कोई मैनिफेस्टो में तो है नहीं कि सबको दिया जाएगा, तो आप लोग अलग से कैसे देंगे? में कहाँ है 500 रुपया देने का? तो लोगों को जरूरत पड़ेगा तो जो सरकार कर रहे हैं हम उसको अच्छा से करेंगे। कुछ बीजेपी राज्यों में गैस का सिलेंडर 400 450 में मिल रहा है, तो आपको लगता है कि बीजेपी इस बार अगर क्षमता में आ गया सेंटर में, तो गैस का सिलेंडर का दाम फाइनली कम होगा? स्टेट गवर्नमेंट की अगर क्षमता है तो लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए। बिहार में 90 रुपया मिलता है पेट्रोल, यहाँ 106 रुपया मिलता है। क्यों? ममता बनर्जी गैस कम नहीं कर दी है, रोती है लोगों के लिए, तो आप कम करिए थोड़ा सा। आप नहीं करेंगे, आप पैसा पूरा ऐंटेंगे लोगों से और रोते रहेंगे, ऐसा नहीं चल सकता। रहिए सर अच्छा, ये तृणमूल कांग्रेस का ये कांग्रेस जय बांग्ला बोलते हैं, हमको फूल और लॉयंस देते हैं। बीच में आपको गो बैक स्लोगन भी सुनना पड़ा किसी अब किसी उनका नेता आते नहीं है, उनका कैंडिडेट आते नहीं है, और हमको देख के उनको जोश आता है तो चिल्लाते हैं, हम फूल से स्वागत करते हैं। वो लोग जय बांग्ला चिल्ला रहे हैं, आप लोग चिल्ला रहे हैं हाउ इज द जोश? এখন তো ভোট আসছে, দিলীপ দাকে কি বলবেন? বাড়ির টাকা পাচ্ছি না, বাড়ি দেখুন জল পড়ছে আমার। বাড়ির 100 ইয়ে টাকা পাননি, বাড়ির টাকা নাম নিচ্ছে আমার আবার বাড়ি দালান বাড়ি, সে শ্বশুরের আমলে বসে গেছে, ছাদ ফেটে গেছে, দেয়াল ফেটে গেছে, চারিদিকে জল পড়ছে। দিলীপ দাকে কি বলবেন? বাড়ির ব্যবস্থা, ওই জন্যই বলছি, বাড়ির ব্যবস্থা না করলে রিস্ক নিয়ে ছেলে আর আমি। মমতা ব্যানার্জি সরকার বলছে তো এখানে টাকা আটকে দিয়েছে নাকি? কারা বলুন? কেন্দ্র আটকেছে। হ্যাঁ, এই ভোটের বড় ভালাই না, তাই এসেছে, আর দেখা দিবি কেউ বাবা। ये सर कीर्ति आजाद जो आपके खिलाफ जो खड़े हुए तृणमूल कांग्रेस की, उसके उनके बारे में क्या विचार है आपका? मेरा कोई विचार नहीं है, पार्टी से निकाले गए हैं। कांग्रेस में पिछले बार लड़े तो जमानत जब्त हो गया है, अब इनके पास कैंडिडेट नहीं है, उनके पास सीट नहीं है, तो ये भानुमति की खेल है, कहाँ से रोड़ा कहाँ से जोड़ दिए, आ गए। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं किया उनको। उनका कहना है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार था, इसीलिए वो छोड़ के आए बीजेपी। टीएमसी में अच्छा है क्या? गंगा है, अब तो नाली में आ गए। बीजेपी में किसका खिलाफ में भ्रष्टाचार है? क्यों नहीं कोर्ट में गए? आ गए चुपचाप कांग्रेस में, और झारखंड हो गए, बंगाल पहुंच गए, यहाँ से रिटायरमेंट हो जाएगा। आपको लगता है कि वो आउटसाइडर वाला नैरेटिव आपको फेवर करेगा? देखिए, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम किसी को आउटसाइडर न मानते हैं, केवल रोहिंग्या और घुसपैठिया को मानते हैं। देश में मनमोहन जी राज्यसभा से जाते थे आसाम से, तो कोई भी मोदी जाके बनारस से लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन नैरेटिव किसने बनाया? ममता बनर्जी। अब उनको उल्टा पड़ा। ये रोहिंग्या और घुसपैठिए का मामला आपने छेड़ा है सर। प्रधानमंत्री ने इस बार खुद कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो को भी टिप्पणी करते हुए कि मुसलमानों को देश का रिसोर्स दे दिया जाएगा जो लोग घुसपैठिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बोला, और बोला कि मंगलसूत्र दाव में है। सर आप भी मानते हैं? मुसलमानों को घुसपैठिया कभी नहीं बोला हम लोगों ने। जो गैरकानूनी ढंग से बांग्लादेश पाकिस्तान से आया उसको घुसपैठिया बोला गया, और उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा।
बहुत देश निकाला है, हमने निकालेंगे। 10 साल से तो आप लोग हैं सर, क्यों नहीं निकाल पाए? समय आएगा सब निकाल। 370 हटा कि नहीं, हाँ। 3 तलाक हटा कि नहीं, राम मंदिर बना कि नहीं है, हाँ। सब समय पर तो होगा। इसको हटाएंगे कैसे, वो तो बताइए। सीए और जब हट जाएगा तब देखेंगे ना, पहले सीए तो लागू होने दीजिए, ममता बनर्जी तो कह रही है कि सीए नहीं करने देंगे। पता चल जाएगा। किसने बोला? ममता बनर्जी बोले अरे इधर ममता बनर्जी की चले तब ना चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, वो अभी 2026 तक तो है उनका सरकार। अब चुनाव के बाद पूछिए क्या होता है। क्यों, ऐसा कुछ प्लान है क्या सर? 2026 तक नहीं चलने देंगे? कोई जरूरी नहीं कि 26 तक चले, तो कब तक चलेगा? वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अभी तो बोल रहे हैं कि आप लोग ये सब कह के कि ये भी आप लोगों ने किया कि संदेश खाली आप लोगों ने बनाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 356 अगर होना है तो उसके लिए माहौल बनना है। वहाँ के लोगों को पूछिए, संदेश खाली जाके नदी पार करिए। हाँ। मैं 5 साल से जाता हूँ वहाँ। जब हमारे कार्यकर्ताओं को मारा हुआ मैंने भी किया। आप किसी को जाने नहीं देता था, जो उसको निकाल दिया गया। तो वहाँ की महिलाओं को पूछिए क्या हुआ है। ममता बनर्जी क्या बोलेंगे? कभी गए संदेश खाली? सर बंगाल में 42 में से कितना आएगा? 35 टारगेट है, पास पहुँचेंगे। 35। और देश में 370। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है ना, उसको हम साबित करके दिखाएंगे। सर प्रधानमंत्री आजकल अपनी जो स्पीच है गारंटी, वो वाला ज्यादा मेंशन नहीं कर रहे हैं सर। अभी उन्होंने बोल दिया गारंटी, जो बोला करके दिया। अब लोगों को मालूम है गारंटी है। धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। अब क्या गारंटी है? ये आपके जो ऑपोजिशन में जो है कीर्ति आजाद, उनका कहना है कि देश में दुर्गा राज्य पहले होना चाहिए, राम राज्य से पहले असुरों का विनाश होना चाहिए। नहीं, ना उनको दुर्गा मालूम है ना असुर मालूम है। वो महिषासुर का शब्द उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। हाँ? उनको पूछिए, महिषासुर उच्चारण करके दिखाएं। वो तो आपको किसी न किसी इंगित में बोल रहा है कि आप ही असुर है। नहीं तो बोले तो क्या बोल रहे हैं, वो तो बंगाल के लोग बोलेंगे। ऐसा दौड़ाएंगे ना, कपड़ा छोड़ के जाएंगे कीर्ति आजाद को। और क्या है, 4 तारीख के बाद आइए, मिठाई खा के जाइए। सर आपने पहले एक टिप्पणी किया था, आपको उसके लिए अफसोस है माँ दुर्गा पर, कि माँ दुर्गा का वंश नहीं है राम का। माँ दुर्गा का माँ बाप है? कौन बेवकूफ बोलता है? वो राम के साथ दुर्गा का क्या तुलना होता है? वो देवी है, ये तो राजा थे, ये दुर्गा का पूजा किया है। हाँ। और ये नालायक लोगों को समझ में नहीं आता है दुर्गा क्या राम है। ये केवल जय बांग्ला बोलते हैं, बांग्लादेश को प्रोनाउन लेते हैं कुछ बेटियाओं से। इनको दुर्गा भी मालूम नहीं, राम भी मालूम नहीं है। राम ने दुर्गा का पूजा किया और इन्होंने उनके साथ तुलना कर रहे हैं। दुर्गा का माँ बाप है क्या? मैंने पूछा था, उनको इतिहास ही नहीं मालूम। चोंडी गलत पढ़ते हैं ममता बनर्जी, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? पूरा भरपेट खा के जाके नमाज पढ़ के रोजा करते हैं वो लोग, रोजा के भी बर्बाद करते हैं। जो रोजा करते हैं वो इफ्तार करते हैं, भरपेट खा के जाके इफ्तार करते हैं। क्यों करते हैं? और मियाँ लोग जो डर से मरे कुछ नहीं बोलते ममता बनर्जी को। सारा धर्मों को इन्होंने भ्रष्ट किया है, ना हिंदू ना मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा है। आज मुसलमान भी जवाब देंगे, हिंदू भी जवाब देंगे। अभी फिलहाल के लिए जो उनका आलोचना है कि देश में जय श्री राम को लेके जो एक माहौल है उसका अंत होना चाहिए, डर का एक माहौल है उसका अंत होना चाहिए। अंत हो जाएगा। जो राम का खिलाफ किया, कांग्रेस का हालत देखिए, इनकी हालत उससे भी बुरा होगी। तृणमूल कांग्रेस का 2 चुनाव देखिएगा, लोकसभा और विधानसभा, उसके बाद बात करिए। 26 के बाद आइए। ये ममता बनर्जी को लेके आपने जो पहले टिप्पणी किया सर, आपको उसको लगता है कि अगर ना करे तो बेटर होता? महिला है। मैं बहुत बार टिप्पणी की, एक बार नहीं है। हाँ, तो इसीलिए और जो किया सही किया, उनकी बात पर किया, मैं कोई जबरदस्ती नहीं किया है। जो गलत बात बोलता है उसका प्रतिवाद होना चाहिए। वो दिलीप घोष की हिम्मत है, करता है। कौन माई का लाल है कि हिम्मत है कि आंख पे आंख रख के बात करें ममता बनर्जी को? उनको चोर बोलने की हिम्मत किसकी है? मैं पहले से बोल गया हूँ और साबित हो गया पूरा के पूरा परिवार चोर है। It is an all-important election battle, just not for Trinamool Congress and BJP, but equally for Dilip Ghosh. Not to forget, it was Dilip Ghosh as the state president back in 2019 when BJP had managed to score 18 out of 42 Lok Sabha seats, surprising everyone. But then Dilip Ghosh was removed from the position and Dr. Shuganta Majumdar became the state president of Bengal of BJP. Not to discount, you also have Shubhendu Adhikari, one who was once with Trinamool Congress and has now come to BJP. He has also gained a lot of significance within the party. This election is thus very, very important for Dilip Ghosh
as he would definitely want to prove a point, just not to Trinamool Congress Mamata Banerjee or Abhishek Banerjee, but also to Bengal BJP as who is the boss and whose Josh is still working in the state of Bengal for BJP. With video journalist Shuman Gupta along with Titash Mukherjee here in Bardhaman, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT. How's that?